ओके, स्टार्ट करते हैं. इन लास्ट पार्ट we discussed the difference between sexual reproduction as well as asexual reproduction. हमने दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लिया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. We have also observed the apomixis and amphimixis terms, whereas we learned that apomixis is nothing but asexual reproduction which mimics sexual reproduction. मतलब ये होता है asexual reproduction but उसकी मिमिक्री करता है sexual reproduction की. And amphimixis, it means sexual reproduction. We have also observed the advantages as well as disadvantages of asexual reproduction and sexual reproduction, and partly we learned whole process of asexual reproduction where we have seen different types like fission, then budding. Okay, the type number 3 we have observed strobilization, fragmentation, gamete formation. Type number 4, 6, that is regeneration, spore formation, vegetative reproduction, as well as we have also seen the vegetative reproduction in different plant parts as shown over here in the diagrams. So this is all what we have learned in our previous video. Now we will be dealing with the process of sexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड हैं और वो सारे मोड्स और टाइप्स हमने समझ लिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही टाइप है एंड दैट गोज विथ डिफरेंट स्टेजेस. बट बिफोर मूविंग टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन we will understand how the process occurs, okay, and what kinds of phases are there in the organisms which performs the sexual reproduction. So you will see over here, sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sex. Now यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेल गैमेट बनाना है और फीमेल गैमेट बनाना है. तो द मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमेट, द फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, देयर विल बी अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, तो इसमें यहाँ बोला है कि यही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक तो सेम इंडिविजुअल बनाएगा या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स बनाएंगे. नाउ यू हैव सीन द बाइसेक्सुअल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म. ओके, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल एनिमल है बट अर्थवर्म रिप्रोडक्शन जक्स्ट्रापोजिंग टाइप से करता है. इट मीन्स one organism can produce male and female gamete both and another organism can also produce male and female gamete both. So that's why over here there is a written the male gamete and the female gamete can be produced by same individual or that may be produced by different individual. डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है. एज यू नो ह्यूमन इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड फीमेल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. The male gametes are called as the sperm whereas the female gametes are called as the eggs. So as you know, the second step is that the gametes fuse to form the zygote which develops to form the new organism. Gametes are always haploid and zygote is always diploid in case of higher animals when we deal with the sexual reproduction. And the third step is that the offsprings whichever produced by the fusion of male and female gamete, that is formation of zygote, they are not identical to the parents or among themselves. मानो एक कपल है, मेल है फीमेल है, उन दोनों को अगर 4 बच्चे हुए तो चारों बच्चे उनके पेरेंट्स के से अलग अलग है और वो चारों एक दूसरे से भी अलग अलग है. सो नो इंडिविजुअल इज एग्जैक्टली सेम and that tells the phenomenon of variation. Wherever you can identify some of the features which are common in their whole family history and that we called it as hereditary. So these are the 3 important points, and sexual reproduction always share a similar pattern in the organism.
Okay, so they always share the similar pattern in the organism. So we have to follow these all 4 steps to understand the process of sexual reproduction. Okay, but before moving to understanding the whole of the process of sexual reproduction, we need to understand what about the phases when actually the organism is capable to perform the sexual reproduction. So here 2 phases are shown. One is juvenile phase and other one is the reproductive phase. Juvenile phase का मतलब होता है the phase where an organism grow, develops and perform all the vegetative activities like cell division, enlargement of sizes, height increment, girth increment, etc. etc. So this period of growth and maturity to sexual reproduction is called as the juvenile phase or simply the vegetative phase. तो यहाँ जुवेनाइल फेज जो आपको दिख रही है वो प्लांट्स की यहाँ एक्सप्लेन की हुई है. हम प्लांट और एनिमल दोनों के फेजेस अंडरस्टैंड कर लेंगे. और रिप्रोडक्टिव फेज जो बोलता है, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है द पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब जुवेनाइल फेज खत्म हो गई कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है कोई भी एनिमल की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. सो वी विल सी ओवर हियर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. We will observe here there will be a seed. This seed is sown in soil. The seed develops into the hypocotyl and then it develops into the plumule radicle and all of the things will be developed over here. Slowly the leaves will be developed. The leaves will start photosynthesizing. The roots are not shown over here but they are there. You have to consider that there are the roots of this plant. Okay. And also you will observe that the leaf sizes is going to be much more bigger. तो यहाँ आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, this one which is considered as the juvenile vegetative stage, it indicates that कि यहाँ जब तक प्लांट ग्रो होता है, उसके रूट्स बड़े करता है, गर्थ बढ़ाता है, लीव्स डेवलप करता है और कैपेबल होता है, जब वो पूरी तरीके से कैपेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैच्योरिटी, तब जाके वो फ्लावर बनाता है. सो फ्लावरिंग स्टेज अकर्स व्हेन द प्लांट इज फुल्ली कैपेबल ऑफ एनर्जी एज वेल एज सेक्सुअल मैच्योरिटी. सो जब तक फ्लावरिंग नहीं बनेगी तब तक प्लांट को हम कहते हैं कि वो जुवेनाइल फेज में है, और जब फ्लावर आ गया तब हम कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया. ओके तो ये 2 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर कंसिडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव्स as well as the growth and the development is considered as the juvenile phase which is shown over here. Okay, अब करते हैं एनिमल की बात. तो एनिमल में भी ऐसा ही है. जब कोई भी एनिमल बर्थ लेता है तो उसके बर्थ के बाद when he births, okay, delivered, then after it develops himself to a maturity, and after the maturity it starts producing the male and the female gamete. So it means that male and the female both, when they are capable of the production of male gametes, that is sperms, and female gametes, that is egg, is considered as their reproductive phase. और जब तक उनमें गैमेट्स बनते नहीं हैं तब उन्हें कहते हैं हम जुवेनाइल फेज में हैं. जैसे अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो मेल होते हैं वो एट द एज ऑफ से फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स, फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स दे स्लोली डेवलप्स टू प्रोड्यूस द गैमेट्स. एंड ऑल्सो फीमेल इन द फेज ऑफ ओके development of menstrual cycle, that will be considered as the reproductive onset. So that's why we will consider over here कि juvenile phase में कोई भी animal अगर है तो वो पूरी तरीके से खुद के बॉडी की डेवलपमेंट करता है.
और रिप्रोडक्टिव फेज में जब वो जाता है तब वो स्पर्म्स या फिर एग बनाना स्टार्ट कर देता है. एंड दैट इज वाई वी कैन डिस्टिंग्विश दीज टू फेजेस. दैट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज इन केस ऑफ एनिमल्स. तो प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें 3 अलग अलग मोड से डिफाइन की जाती है. कुछ प्लांट स्पीशीज जो है उनको हम एनियल प्लांट्स कहते हैं. Some of them behave like biennial plants and some like perennial plants. यहाँ annual plants, there are so many examples of annual plant. As you will see, wheat, rice, these are all annual plants. You will observe the biennial plants like ginger, okay, then onion, and you will observe the perennial plants example like mango, okay, sapota, it means chiku, okay, and guava. There are so many examples of perennial plants. So all of these three things indicate the starting of juvenile phase as well as the reproductive phase. और ये बहुत easy है समझना. चलो अभी एक एक को करके समझते हैं. एनुअल प्लांट का मतलब होता है कि एक ही सीजन रहेगा, वन सीजन फॉर बोथ द थिंग्स. मतलब एक ही सीजन में उसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो जाएगा, एंड देन प्लांट डाई. Okay, very simple. There will be only one season where plant develops vegetatively, develops flowers reproductively, and then the seed set will done and the plant will die. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं व्हीट का या फिर राइस का. गेहूं जो है वो आपने अगर ज़मीन में उसको सो कर दिया, लगा दिया, तो वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, स्प्राउटिंग करता है. उसके बाद उसको लीव्स आती है, लीव्स बड़ी होती है, स्टेम बनता है, और फिर उसको फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स पे बहुत सारे सीड्स बनते हैं. तो सीड्स मतलब क्या? गेहूँ. सीड्स बनने के बाद वो प्लांट जो है वो सूख जाता है पूरी तरीके से, एंड द फार्मर यूज टू कट इट. फार्मर उसे कट कर लेता है और हार्वेस्ट करता है, और फिर वही गेहूँ जो है मार्केट में बेचने के लिए आता है. तो ओवरऑल इफ यू ऑब्जर्व द व्हीट, इट हैज़ ओनली वन सीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फेज. इन प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स करते हैं. बायनियल का मतलब होता है कि पहले सीजन में वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, ओके, और दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करता है. एज यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर, 2 सीजन फॉर वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव स्टेज, एंड देन द प्लांट डाई. मतलब पहला सीजन इज एक्सक्लूसिवली फॉर देयर वेजिटेटिव ग्रोथ, and second season is for their reproductive growth, and after that the plant will die. So if you observe onion की अगर आप seed sow करते हो, the seed will develop into a plant and then the plant will develop into a bulb. अगर आप अनियन का बल्ब, ज्याला आपण मराठीत कांदा म्हणतो, वो सो करते हो, then there will be a development of vegetative growth, and then there will be a flower. So it very easy. If you want a bulb, you need to sow the seed. If you want seed, you need to sow the bulb. And it is clearly indicating that sowing the bulb and development of seed is called as the reproductive stage, okay, and apparently sowing the seed and development of bulb is called as the vegetative phase. And that is why these kinds of plants are called as the biennial plants, which actually requires 2 seasons. समझ लो कि सीजन मतलब ईयर नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट इट डेवलप्स इन 2 years, ओके. किसी प्लांट का सीजन जो है वो 3 महीने का होता है, किसका 6 महीने का होता है, कुछ प्लांट्स का 1 साल का भी हो सकता है. तो यहाँ हम सीजन की बात कर रहे हैं, ईयर की नहीं, ओके. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज द पेरेनियल प्लांट. पेरेनियल का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव कंटिन्यूअसली ट्रांजिशन में आते हैं. मतलब मैंगो प्लांट, अगर आपने मैंगो की गुठली जमीन में लगा दी तो वो ग्रो हो जाएगा, 2 या 3 साल तक वो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ दिखाएगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years इट डेवलप्स टू फॉर्म द फ्लावर्स, एंड आफ्टर दैट द फ्रूट सेट विल डन. तो आप क्या करोगे? आप वो आम तोड़ोगे, खा लोगे. इन द नेक्स्ट ईयर again it will develop to starts the fruits. Again in the next year it develops to starts the fruit, and it clearly indicates that these fruits that yearly will develop,
every year the fruits will develop to the mango plants, and that indicates their perennial nature. So that's why we say over here that many seasons that are required for vegetative as well as reproductive stage, and then the plant die. So maybe mango plant will die after 10 or 15 years of its age. So that's why every year you will get a continuous flowering and fruits. So what about between the time of flowering? तो एक बार फ्लावर आ गए, फ्रूट्स आ गए कि नेक्स्ट ईयर उसी सीजन में आपको फ्लावर मिलने और फ्रूट मिलने, तब तक ये जो बीच में एक साल रहेगा या फिर 8-10 महीने रहेंगे, इस 10 महीने में वो प्लांट ग्रो करेगा, मतलब उसको नई पत्ती आएगी, नई ब्रांचेस आएगी, एंड देन द प्लांट बढ़ता जाएगा और वो बहुत बड़ा बनेगा, उसका सेकेंडरी ग्रोथ भी होते जाएगा. And that is the speciality of these perennial plants. Okay, so that's why these three terms are very important in case of plant science: annual plants, biennial plants and perennial plants, and you must know what are these. Okay, तो इसके लिए एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, उसे हम समझ लेते हैं. Here you will see the yellow shaded portion indicating the annual plant, that is one life cycle, and then the next shaded portion that indicates the perennial plant, that is a multiple life cycle. So it's very easy to understand. देखो अभी यहाँ ये जो है रेड कलर की ये सीड है. अब ये सीड को आपने सो कर दिया तो उसको फिर प्लूम्यूल रेडिकल डेवलप हो जाएंगे, धीरे धीरे जो है ये बड़ी हो जाएगी और उसमें फिर बड़े बड़े लीफ आएंगे और प्लांट बड़ा हो जाएगा. यू विल सी दिस स्टेज, और इस स्टेज में उसको फ्लावर्स भी डेवलप हो जाएंगे. सो यू विल सी ओवर हियर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो था वो था वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज. ओके, और ये जो था ये है रिप्रोडक्टिव फेज. ओके, वेयर द प्लांट डेवलप्स टू प्रोड्यूस द फ्लावर. फ्लावर बन गए, फ्लावर को सीड आएंगी, आप सीड को हार्वेस्ट कर लोगे एंड द साइकिल विल कंटिन्यू. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लांट है ये अभी मर गया और उसकी सीड जो है वो उसकी लाइफ कंटिन्यू करेगी. हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है. इन केस ऑफ पेरेनियल प्लांट यू विल नॉट सी सेम सिचुएशन. तो व्हाट यू विल सी कि देखो ये है सीड, सो हो गई, प्लांट डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद उसको फ्लावर्स आ गए. अब इस फ्लावर से फिर से जो है आपको सीड मिलनी है. ओके, फ्लावर से फिर से हमें सीड मिलेगी. अब ये जो है ये सीड आप नई जगह पे लगाओगे और आपको नया प्लांट मिलेगा. बट ये जो पुराना प्लांट है ये आगे बढ़ेगा और ये और डेवलप होगा, बड़ा होगा, एंड इट प्रोड्यूस इवन मोर फ्लावर्स. इफ यू कंपेयर द फर्स्ट सीजन ऑफ देयर फ्लावर, द फ्लावर्स आर लेस. और आप दूसरे सीजन के फ्लावर्स को अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. तो सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, इट विल कंटिन्यू and develop more and more flowers and more seeds. That indicates the plant is developing more, and this is a situation called as the perennial plants. Very simple mechanism. Okay, hope you understand this. Now if you go further, it is not always that the plants will behave annually, biennially or perennially. Sometimes plants exhibit unusual flowering phenomena. मतलब हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शनल केसेस इन द साइंस. हर चीज में आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे. जैसे यहाँ मिल रहा है प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन, मतलब कुछ कुछ प्लांट्स एनुअली, बायनियली या फिर पेरेनियली बिहेव नहीं करते, वो कुछ अलग प्रकार से ही बिहेव करते, और उसी अलग प्रकार को हमें अभी समझना है. तो देखते हैं. हियर यू विल ऑब्जर्व द बाम्बू स्पीशीज. Okay, you all know about the bamboo plant. ये जो bamboo plant है that flowers only once in their lifetime. पूरे लाइफ टाइम में वो एक ही बार फ्लावर करता है. ओके, एंड इट इज जनरली कंसिडर्ड एज आफ्टर 50 to 100 ईयर्स. मतलब बाम्बू प्लांट 50 या फिर 100 साल कंप्लीट करने के बाद फ्लावर बनाता है, उसको बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं और उसके बाद प्लांट मर जाता है. सो यू विल ऑब्जर्व द बाम्बू लाइफ साइकिल, इट गोज अप टू 100 ईयर्स. एंड डोंट यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग? सो इट मीन्स दैट बाम्बू प्लांट लिव्स 100 ईयर्स
but flowers only once in their lifetime and then it will die. So that is the speciality of bamboo. If you observe the next plant, which is called as Neela Kuranji. So this is the Hindi name called as Neela Kuranji. The scientific name is Strobilanthus kunthiana. You will observe over here. This Strobilanthus kunthiana flower once in 12 years. हर 12 साल के बाद ये फ्लावर करता है. ओके और ये प्लांट ज़्यादा करके केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाया जाता है. इफ़ यू ऑब्जर्व, हर 12 साल में ये फ्लावर करता है. तो पिछले टाइम इसने फ्लावर किया था 2006 में. मतलब नीला कुरंजी ने सितंबर अक्टूबर के महीने में 2006 में फ्लावर किया था. अभी 2006 के बाद 12 साल आपको काउंट करने हैं. ओके सो 2016 एंड 2018. 2018 में भी इसने फ्लावर किया है. अभी अगर आपको नीला कुरंजी के फ्लावर्स देखने हैं तो यू हैव टू वेट 12 मोर ईयर. सो पॉसिबली द सेम प्लांट विल फ्लावर इन 2020. ओके पॉसिबली आफ्टर 12 ईयर्स. सो दैट इज अ स्पेशलिटी. तो आपको 2020 तक रुकना पड़ेगा. सॉरी नॉट 2020, आपको रुकना पड़ेगा 2030. 2030 तक रुकना पड़ेगा आपको, तब जाके ये प्लांट फ्लावर करेगा. एंड इट इज़ अ वेरी मच अट्रैक्शन टूवर्ड्स द टूरिस्ट. उस सीजन में टूरिस्ट बहुत आते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर के फ्लावर्स डेवलप करता है. दैट्स वाई द नेम गिवन ओवर हियर इज नीला कुरंजी. नीला मतलब ब्लू. तो इसको बहुत ब्लू फ्लावर्स आते हैं और ये ज़्यादा करके पहाड़ों में पाया जाता है. तो जो टॉप हिल स्टेशंस है केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में, तो वो हिली एरिया पूरी तरीके से ब्लू दिखने लगता है. सो यू आर ऑब्जर्व द हिली एरिया इज ग्रीन ड्यू टू द लीव्स. पर उस सीजन में वो पूरा ब्लू दिखता है, नीला, जैसे नीला पहाड़ हो. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नीला कुरंजी. सो स्पेशलिटी ऑफ द प्लांट. तो ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे प्लांट हैं जो अलग अलग प्रकार के फेनोमेनॉन बिहेव करते हैं. बट वी हैव ऑब्जर्व ओनली दीज टू बिकॉज दे आर मेनली प्रेजेंटेड इन योर NCERT बुक एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स. ओके तो चलो अभी एनिमल की बात करते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व एनिमल्स, birds that are living in nature, they lay the eggs only seasonally. okay birds जो होते हैं वो सीजन वाइज एग्स ले करते हैं. बट देयर इज एन एक्सेप्शन अगेन इन केस ऑफ पोल्ट्री. यू नो द चिकन्स, बर्ड्स इन द कैप्टिविटी. जो भी बर्ड्स कैप्टिविटी में है, ह्यूमन इंटरवेंशन में है, ह्यूमन उनकी तरफ देख रहा है और उनकी केयर कर रहा है, कैप्टिविटी में है, तो these poultry birds can be made to lay eggs throughout the year. Now why they are able to make the eggs throughout the year? Because in this case laying egg is not related to the reproduction, but it is the commercial exploitation for human welfare. तो इनको हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगा लगा के इनको जो है एग्स डेवलप किए जाते हैं एवरी ईयर and throughout the year, not the seasonally. okay and you will observe in another placental mammals. तो हम भी placental mammals ही है. the mammals who develop a temporary organ called as placenta, they are called as the placental mammals. उनकी अगर बात करते हैं placental mammals की, so you will observe the females of placental mammals exhibit a cyclical changes, and these cyclical changes in the activity of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. तो ये जो है cyclical changes, ये cyclical changes उनके ओवरी में होते हैं, ओवेरियन डक्ट में होते हैं, ओके और रिप्रोडक्टिव फेज में कंटिन्यूसली होते रहते हैं. तो हम इन cyclical changes की अभी बात करेंगे. So we will be dealing with the placental mammals, okay, and we will see what kind of these cyclical changes are there in case of the animals. तो एनिमल में अगर रिप्रोडक्टिव फेज हमें समझनी है तो वी हैव टू कंसिडर द प्लासेंटल मैमल्स, जहाँ पे द वन विच आर विथ नॉन प्राइमेट्स एंड द अदर विच आर विथ प्राइमेट्स. तो नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से पता है. नॉन प्राइमेट्स जो है उनके एग्जाम्पल्स आपके सामने है. देखो इस बॉक्स में मैं शेड कर रहा हूँ. काउज, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल मैमल्स.
but they are not primate. It means they are not included in the order Primata. Okay, and basically the primates includes these three, that is monkey, apes and humans. तो ये तीनों प्राइमेट्स है और ये बाकी बचे सारे जो है वो नॉन प्राइमेट्स हैं। तो नॉन प्राइमेट और प्राइमेट दोनों में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, बट नॉन प्राइमेट के साइक्लिकल चेंजेस जो होते हैं उनको हम सीजनल चेंजेस कहते हैं, पर्टिकुलरली ऊस्ट्रस साइकिल। ओके, और प्राइमेट्स में जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और उनको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो वी विल अंडरस्टैंड दीज टू इन डिटेल। तो नॉन प्राइमेट्स फीमेल जो होती है उनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन विच आर कॉल्ड एज द ऊस्ट्रस साइकिल। और ये ऊस्ट्रस साइकिल पूरे साल भर में एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, एंड दैट वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। कुछ एनिमल्स का ऊस्ट्रस साइकिल जनवरी टू जून होता है, कुछ एनिमल्स का लेट से फ्रॉम जून टू दिसंबर होता है, एंड दैट वेरीज। तो 4-4, 5-5 या फिर 6-6 महीने के इनके साइकिल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स का 2-2, 3-3 महीने का ही होता है। इट मीन्स दैट पूरे साल भर में ये जो एनिमल्स है ये सिर्फ 2 या 3 महीने ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इट मीन्स दे कैन हैव द बेबीज ओनली इन दैट सीजन, नॉट इन द अदर सीजन। रीजन, बाकी टाइम में उनकी ऊस्ट्रस साइकिल पूरी तरीके से बंद होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन ऊस्ट्रस साइकिल। और ऐसे ब्रीडर्स को हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, मतलब सीजन आने के बाद ही वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, सीजन आने के बाद ही वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सीजनल ब्रीडर्स। सो मेनी मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर, that is in the wild conditions, exhibit such cycle only during the favorable season in their reproductive phase. And such favorable seasons, they start with the oostrus cycle, and oostrus cycle ends when the favorable season ends, and they will wait for the next year and next favorable season to again begin with the oostrus cycle. And such animals are considered as seasonal breeders. Seasonal breeders. But if you observe in case of primates like monkeys, apes and humans, they are the continuous breeders. Continuous breeder मतलब उनमें जो साइकिल होती है उन साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ होती है। इसका मतलब एवरी ईयर जो 12 महीने में ये साइकिल कंटिन्यूअसली एवरी मंथ आती है। सो इसका मतलब द प्राइमेट्स एंड मेनी अदर मैमल्स विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज are called as the continuous breeder. It means that these animals can have babies at any season. उनके लिए सीजन की राह नहीं देखनी है, मतलब जनवरी हो, फरवरी हो या फिर कौन सा भी महीना हो, वो ब्रीडिंग कर सकते हैं एंड दे कैन हैव द बेबीज। Whereas non-primates mammals, they have to wait for their oostrus cycle to begin, and they have to wait for their particular season, favorable season to start with the oostrus cycle। मतलब जब उनका फेवरेबल सीजन होगा तभी वो ब्रीडिंग कर सकते हो, तभी उनको बेबीज हो सकते हैं, बाकी टाइम पर नहीं होगी। Whereas प्राइमेट्स में 12 महीने में कभी भी हो सकती है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमेट इज ह्यूमन। एज यू नो वी फॉलो द सेम पैटर्न। और ह्यूमन फीमेल में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि हर 28 डेज के बाद रिपीट होते हैं। एंड वी विल बी डीलिंग विद दिस एंड एक्सप्लेनिंग इन दिस डिटेल in the chapter human reproduction. Okay, so these are two important points needs to be know to understand the differences in the mammals. Okay, so in the next part we will be dealing with 3 important stages of sexual reproduction, and we will understand all these 3 parts of sexual reproduction in depth. Okay, thank you very much for watching the video. Hope you enjoyed it. Take care.